تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا روضہ میرے خواجہ کا۔ کیا کہنے، کہیے نا سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، واہ۔ تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کا روضہ میرے خواجہ کا، اور جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے، بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا، واہ 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 واہ۔ بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا۔ اور کیا ایک انا ساگر، کیا ایک انا ساگر چاہے تو سمندر بھی، کیا ایک انا ساگر چاہے تو سمندر بھی ارے پی جائے گا ایک پل میں کاسا میرے خواجہ کا، واہ واہ واہ۔ پی جائے گا ایک پل میں کاسا میرے خواجہ کا۔ اور شاعر نے کہا سنانے اپنی بربادی کہ یہ افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کہ افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ الحمدللہ میری مائیں بیٹھی ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر اپنے دل کو مجھے دے دیں، کان کو میری طرف کر دیں، آنکھوں کو میری طرف کر دیں، زبان مصطفیٰ کی محبت میں کھولیں، اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ باتیں آپ سن لیں، اللہ چاہے گا تو آپ کی دل کی دنیا بدل سکتی ہے، میری بھی دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نیک کار ہوں، لیکن قرآن میں رب فرماتا ہے یہاں جشن غوث الورا ہے، اور آج جشن خواجہ غریب نواز ہے، اور پھر جو ہے بس سلسلہ تعمیر جو ہے قبرستان کے تعلق سے بھی یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ تو 3 ٹاپک پر یہ تقریر ہونے والی ہے۔ کسی کے پاس گھڑی ہے؟ اگر ہے ہاتھ کی گھڑی تو مجھے بتا دو، ہے کسی کے پاس گھڑی؟ ہے کسی کے پاس گھڑی؟ اگر گھڑی ہے یہ میرے بھائی کے پاس ایک گھڑی ہے۔ ایک بات بتائیے بھائی جان، 1 سے لے کر کے 6 تک ایک کاٹا ہے، اور وہ جیسے ہی جا کر کے 6 پہ سے آگے نکلتی ہے، میں کہتا ہوں آپ کی گھڑی میں کتنا ٹائم ہوا ہے؟ آپ کہو گے مولانا 6 بج گیا ہے۔ میں نے کہا دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے اس کے ہاتھ کی گھڑی 24 گھنٹہ نہیں بتاتی ہے بلکہ 12 گھنٹہ بتاتی ہے، 12 کے بعد 13 نہیں بتاتی ہے، پھر 1 بتاتی ہے۔ آپ کو پتا یہ چلے گا کیونکہ جو 6 تک پہنچ جاتا ہے، جب 6 تک قریب پہنچ جاتی ہے، کاٹا پہنچ جاتی ہے، آپ کہو گے منظر نواز کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جو انسان غریب نواز تک پہنچ جاتا ہے دھیرے دھیرے 11ویں تک پہنچ جاتا ہے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ قاری منظر نواز صاحب قبلہ۔ آج بہت اچھا لگ رہا ہے، جو غریب نواز تک پہنچ گیا وہ غریب نواز کے بعد 7 8 9 10 پھر اس کے بعد بچ جاتا ہے 11۔ جو غریب نواز تک پہنچ گیا، جو 6 تک پہنچ گیا، وہ 11ویں والے تک پہنچ جاتا ہے، اور جب 11ویں والے تک پہنچ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 12ویں والے تک پہنچ جاتا ہے، اور جو 12ویں والے تک پہنچ جاتا ہے تو 12ویں کے بعد کوئی اور نہیں، وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ پتہ یہ چلا اگر خدا تک جانا ہے تو غریب نواز تک پہنچیے، 12ویں والے تک پہنچیے، 11ویں والے تک پہنچیے، اس کے بعد تمہیں خدا مل جائے گا۔ جب خدا ملے گا خدا کی ساری خدائی تمہیں مل جائے گی۔ قرآن میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے کہا؟ بے ایمانوں سے نہیں کہا، ایمان والوں سے کہا۔ ایمان والا ہے کون؟ جس کے سر پہ ٹوپی ہے وہ ایمان والا، جس کے چہرے میں داڑھی ہے وہ ایمان والا، جس کا باپ دادا مومن ہے وہ ایمان والا۔ ایمان والا وہ نہیں ہوتا، ایمان والا وہ ہوتا ہے قیامت پر جس کا ایمان ہو، قرآن پر جس کا ایمان ہو، آخرت پر جس کا ایمان ہو، نبی کو دیکھا نہیں جو نبی کو مانے وہ ایمان والا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سرکار کی حدیث سنیے، اب ذرا غور کیجئے گا، جو چلے گئے ہیں اس کو پکڑ کے رکھا نہیں جائے گا۔ دنیا کا کتنا بھی امیر آدمی ہو، VIP
देहाती आदमी हो, वो रहने के लिए नहीं आया है, उससे तो जाना है बुखारी शरीफ उठा के मोमिन कौन होता है, मुसलमान कौन होता है, ईमान वाला कौन होता है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक के बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, कबीले से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा, मालो मता से ज्यादा, यूं समझो अपनी जान से ज्यादा अगर नबी से प्यार करता है वही मोमिन होता है, वही मुसलमान होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। कितने लोग चले गए हैं, कितने लोग भाग गए हैं, वो ये समझ रहा है अगर मैं भाग जाऊंगा इनकी तकरीर कमजोर पड़ जाएगी। अरे नादान, मैं तुझे खुश करने नहीं आया, मैं तो अपने रब को राजी करना चाहता हूँ, मैं तो नबी को राजी करना चाहता हूँ। वो महवे इल्तिफात है जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है जो चाहो मांग लो। और बरेली के ताज साहब इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और लिखने लगते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत। वाह भाईजान दोनों में आवाज दे दीजिए। बेटा अब अदब से सुनिए, अब अकीदत से सुनिए। गरीब नवाज की बात हो रही है। कौन गरीब नवाज है? अब जानते हैं, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया उसे गरीब नवाज कहते हैं, जिन्होंने अंगूर का बागीचा छोड़ दिया उसे गरीब नवाज कहते हैं, जो महल छोड़ दिया उसे गरीब नवाज कहते हैं, खानदान छोड़ दिया उसे गरीब नवाज कहते हैं। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा ने भेजा। वाह 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 वाह, अताए रसूल कहा जाता है, हिंदल वली कहा जाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथी मोहतरम है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े शायर हैं और साथ में एक ही दारुल में तालीम हमने हासिल की है। ऐसा नहीं है कि मंजर नवाज को कुर्सी मिल गई तो बोलने में शर्मिंदगी होगी। एक प्लेट में खाने वाले, एक बिस्तर में सोने वाली साहब अभी मेरे सामने मौजूद है। खुदा की कसम बड़ी मेहनत होती है, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दादा खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज सारे लोगों का कहना यह है कि मेरा बेटा मेरी बात पे नहीं चलता है, मेरी बेटी मेरी बात पे नहीं चलती है, मेरे घर वाले मेरी बात पे नहीं चलते हैं। लेकिन एक बात बता दो ना, आपकी बात आपके बेटे ना माने, आपकी बात आपकी बेटी ना माने, आपकी बात आपकी बहू ना माने, आपकी बात आपकी बीवी ना माने, लेकिन मेरे गरीब नवाज कैसे गरीब नवाज है? अगर काफिर के ऊपर नजर पड़ती है, कलमा पड़ता है मुसलमान। वाह 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 वाह, एक क्या आदमी नहीं है, तारीख इस्लाम पढ़िए, मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाया। क्या कहने, हक बात है, 90 लाख 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाया। मेरे भाई दोनों जगह जो है आप आवाज दे दे, 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाया। कैसे मुसलमान बनाया? कौन सा आला उनके पास था, कौन सी जबान उनके पास थी, क्या उन्होंने पढ़ाया कि लोग कलमा पढ़ लिए? आप तारीख पढ़ाते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए आप कुछ कहते हैं तो आज हमारा दिल दुख जाता है, आपका दिल दुख जाता है। अगर हमारे जो है सईद भाई ने प्रोग्राम रखा तो आपको साथ देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्केस्ट्रा नहीं कर रहा है, गाने की महफिल नहीं कर रहा है, नाच और नचनियों को लेकर नाच और गाने नहीं करा रहा है। अगर करा रहा है तो मुस्तफा की औलाद की बात करा रहा है, अगर करा रहा है गौसे आजम की शान में जलसा क्या कर। कहने, जिंदाबाद, नारे मुखालिफ हो जाते हैं। वाह, नारे रिसालत। मेरे भाई अगर एक नौजवान आज देखें, नौजवानों के हाथों में बियर के बोतल होता है, नौजवानों के हाथों में शराब के गिलास होते हैं, नौजवान सट्टा खेलता है, नौजवान पत्ता खेलता है, लेकिन ये सईद भाई ने कहा मंजर नवाज मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, करूंगा तो मुस्तफा की नाम का जलसा करूंगा। फिर तुम उसके मुखालिफ हो गए, हम नहीं जाएंगे, उसके साथ नहीं देंगे, उन्होंने ऐसा किया। सुनिए, ये हमारे अभी शायर साहब पढ़ रहे थे, कितना अच्छा पढ़ रहे थे। हमारे जमील अख्तर बरचौंदी है, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। ये आपके घर के हैं, आपके इलाके के हैं, ये आपके परवरदा है, जिसे मरकजी कहा जाता है। हिलाल रजा मरकजी पूरे सीमांचल में चल रहे हैं, गुलाम अहमद रजा साहब पूरे सीमांचल में चल रहे हैं, लेकिन अपनों की कदर कहाँ होती है? बाप को बेटे की कदर कहाँ है? भाई को भाई की कदर कहाँ है? दोस्त को दोस्त की कदर कहाँ है? इसीलिए हमारे सीने में इल्म नहीं होगा तो हम यही करते रहेंगे। अपने वाला ना तुम्हें धोखा देगा, अपने वाला तो वो होता है जब आजान की आवाज आती है तो मस्जिद भी जाना जानता है, और किसी के जो है मरने की खबर आती है तो कब्रिस्तान भी जाना। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलक आला हजरत हजरत कारी मंजर नवाज साहब किबला। नारे तकबीर। वाह शायद मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ, आपको तकलीफ ना हो जाए, अब संजीदगी से सुनिए। एक बात बताइए, मुझे अगर कोई आदमी उठ के आ जाए और कहे मंजर नवाज मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, तुमसे बहस करना चाहता हूँ, तो मुझे जलाल आ जाएगा ना। लेकिन मेरे करीब नवाज जब भारत की सरजमीन पर आए, वक्त बहुत कम है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना है, बादशाह वक्त है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा एक बाबा आया है, लेकिन अपनी ऊँटनी को बिठा दिया, हमारी ऊँटनी उठ नहीं रही है। एक कटोरा भेजता है, 7 किलोमीटर के अहाते का पानी, पूरा आना सागर का पानी एक कूजे में आ जाता है। इस बाबा को कैसे भगाया जाए? अगर ये नहीं जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी मुसलमान हो जाओगे, मेरे राज खत्म हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कोई ऐसा जो इसको लाजवाब कर दे, है कोई ऐसा जो उसके बात करने में उसको निकाल दे। एक ने कहा पंडित था। पंडित ने कहा सुनिए, मुझे संस्कृत के बहुत महारत हासिल है, मुझे बहुत संस्कृत आती है और मैं तो कैसे कैसे को पछाड़ चुका हूं। पंडित से कहा ठीक है। फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कितना इनाम लोगे? कहा सुनिए, अगर इनाम देना है तो आपके हिस्से जो है दौलत के 4 हिस्से में 1 हिस्सा मुझे चाहिए। कहा कि ठीक है, 3 हिस्सा बचेगा, राज तो रह जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें दिया, लेकिन उसे भगाना होगा, उस बाबा को निकालना होगा, उस बाबा को हिंदुस्तान से खत्म करना होगा, जाने देना होगा। कहा ठीक है, घबराइएगा नहीं। देखिए सुनिए मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, वो पंडित को बहुत जो है अपनी जबान पे महारत हासिल थी। मेरे गरीब नवाज हैं, आज आप जाते हैं अना सागर के नीचे, ऊपर जैसे ही जाते हैं वहीं पर एक गुफा है, पत्थर के नीचे मेरे गरीब नवाज अंदर घुस कर खुदाबंद कुद्दूस की इबादत करते थे, नमाज़ें पढ़ा करते थे। बाहर एक दरख्त था, उस दरख्त के पास बैठकर लोगों के सामने दीन की बातें करते थे, दीन की तबलीग करते थे, दीन की बातें लोगों को बताते थे। अल्लाह अकबर। फिर पृथ्वीराज चौहान ने उस पंडित को भेजा। पंडित को बड़ी महारत हासिल थी, पंडित बड़ा जलाल में जा रहा था, गुस्से में जा रहा था। आज बाबा को निकाल दूंगा, आज हिंदुस्तान से ये फकीर जो आया है यहाँ से भेज दूंगा। लेकिन उसे पता कहा था ये आया नहीं है, मुस्तफा ने भेजा है, और जिसे मुस्तफा भेजे उसे कोई भगा नहीं सकता है। जो अपनी मर्जी से चलता है वो मिटता है, जो खुदा की मर्जी से चलता है वो कभी नहीं मिटता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह तुम अपनी ख्वाहिश के एतबार से चलते हो, गरीब नवाज रब की रजा के लिए चल रहे हैं, मुस्तफा की आता से चल रहे हैं। आ गए, अल्लाह अकबर, बड़े गुस्से में थे और दीन की बातें बता रहे हैं, शरीयत की बात बरला रहे हैं, अहादीसे मुस्तफा पेश कर रहे हैं। अभी इतना कर ही रहे थे, वो बिल्कुल जलाल में आए हैं और जलाल और गुस्से में आकर कहते हैं अल्लाह अकबर। जैसे ही जलाल में आए हैं, जलाल में आने के बाद मेरे गरीब नवाज की नजर उस पे पड़ी, उस पंडित की नजर गरीब नवाज पे पड़ी। जब नजर पड़ी ना तो नजर से नजर मिली तो दुनिया बदल जा रही है। अब पंडित कहता है मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, आपके साथ मैं बातें करना चाहता हूँ, आपको लाजवाब कर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज ने गुस्से में नहीं देखा, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया काफी दूर से आए हैं, पहले जरा बैठ जाइए। उसने कहा मैं बैठूंगा नहीं, पहले मुनाजरा करूंगा। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मुनाजरा के लिए वक्त है, अभी समय है, टाइम है, आप दूर से आए हैं, जरा बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कहता है मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मेरे दरबार में जो आता है पहले हम उसे कुछ पिला दिया करते हैं, पानी का जो है गिलास ले जाकर उसको पानी पिला दिया गया, ये पानी पी लीजिए। वो कहा नहीं पीता। कहा पी लीजिए ना, मुनाजरा हो जाएगा। पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर बैठे हैं, अब मुनाजरा करेंगे। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मुनाजरा होगा लेकिन थोड़ी देर बैठ जाएं। अल्लाह अकबर। वो खादिम जो बैठे थे सबके सामने प्लेट लगाया, उसके बाद कहा सबको खाना डाल दो, सबको खाना के लिए जो है प्लेट में खाना परोस दो। सबने खाना परोस दिया, वो भी सामने था, कहा मैं नहीं खाता। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया ये फकीर के जो है आस्थाने पे आए हो, सब लोग बैठे हैं, आप भी खा लो और खाने के बाद मुझसे मुनाजरा कर लेना, मुझे हिंदुस्तान से निकाल देना, तुम इसलिए आए हो। थोड़ी देर बैठो, पहले खाना खा लो। अब जैसे ही उठाया हल्का से
جو ہے मुंह पे लिया, निवाला मुंह पे लेने के बाद हल्क से नीचे जो है निवाला उतरा, दिल की दुनिया बदलने लगी। अब दिल में सोचने लगा ये कैसा अल्लाह का बंदा है, ये कैसा इंसान है, मैं इसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, मैं इसे जलील करना चाहता हूँ, इसे निकालना चाहता हूँ, इसको जो है मैं रुसवा करने आया हूँ। लेकिन ये आदमी कैसा है, मुझे पहले बिठाता है, फिर पानी पिलाता है, फिर मेरी इज्जत करता है, फिर खाना देता है, हल्क से नीचे खाना उतरा है, दिल की दुनिया बदली है। पंडित ने कहा बाबा अब मैं मुनाजरा नहीं करना चाहता, अब भारत से निकालना नहीं चाहता, मैंने आपका किरदार देखा है, जब आपका किरदार इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा का किरदार कितना अच्छा होगा। बाबा अब मुनाजरा नहीं करना चाहता, जिस नबी का कलमा आपने पढ़ा है उस नबी का कलमा हमें पढ़ा दो, हम मुसलमान होना चाहते हैं, हम इस्लाम कबूल करना। नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। तेरा किरदार कितना भिनौना है, मेरा किरदार कितना खराब है, लेकिन मेरे गरीब नवाज का किरदार कितना अनोखा है, मेरे गरीब नवाज की शान कितनी अनोखी है, कितनी निराली है। गरीब नवाज के किरदार ने पहले कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना दिया। ऐ मुसलमानों, 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाना, कभी कैलकुलेटर में बैठ कर देखना एक दिन में कितने लोगों को मेरे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया है, मुसलमान बनाया है, इस्लाम में दाखिल किया है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पहले अपने आप को मिटा कर देखो। आओ भारत की सरजमीन पर जब आज गरीब नवाज की बात हो रही है तो किसी और के तरफ में जो है मंसूब तो है गौसे आजम के तरफ, लेकिन गरीब नवाज की बात हो रही है। मेरे गरीब नवाज रात की तारीकी में देख रहे हैं, चंद मुरीदीन है देख रहे हैं, कुछ आतिश परस्त है, आग की पूजा करने वाले आग को जलाकर उसके सामने पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई सूरज का पूजा करता है, कोई चांद का पूजा करता है, कोई सितारों का पूजा करता है, कोई दरख्त का पूजा करता है, कोई पानी का पूजा करता है, कोई पत्थर का पूजा करता है, कोई दरख्त का पूजा करता है। मेरे रब का करोड़ों एहसान है, हमें किसी और के सामने नहीं झुकाया, रब ने झुकाया तो अपनी बारगाह में झुकाया, दिल झुकाया तो आमना के लाल की बारगाह में झुकाया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मुस्तफा देखो, आओ तारीख इस्लाम पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वक्त है, आले रसूल की आमद है, क्या कहने का, औलाद रसूल की आमद है। बहुत आसानी से औलाद रसूल मिल गए हैं। मेरी बेटियों तुम भी बैठी रहो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रफीक तुम भी बैठे रहो। आप कहोगे कि बड़े जज्बाती गुफ्तगू करते हैं, ये इश्क है यार, ये मोहब्बत है, क्या ये कहने, अकीदत है। वाह वाह। मैं तो समझता हूं कि मैं समझ नहीं पाता इश्क मुस्तफा मंजर मेरे